आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि टू सिचुएशंस कि आफ्टर द प्रॉब्लम इज सॉल्व डज द रिलेशनशिप स्टिल स्टे दैट वे और इट इवॉल्व्स टू अ बेटर स्टेज एंड व्हाट हैपेंस कि क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, जो मेंटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है, डू दे टेक इट आउट पर्सनली या व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन, द आउटकम इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव? नहीं, मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आई डू नॉट डू मेंटरशिप इन अ प्रोफेशनल वे. आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग, सो देयर एक्सपेक्टेशन इज आल्सो लो फ्रॉम मी. Okay. And the other thing is my experience and my knowledge, because of the number of years I have seen this world, and so it is normally little higher than the people who are coming to me. So normally he may not take my advice. That is a different thing, but my advice will not be wrong actually. So there is it never happens that he or she start disliking me or avoiding me or not asking it again. ऐसा नहीं होता है. But once you are a professional mentor, then their expectation increases, है ना? And in that case, if they do not get the solution or that solution doesn't work, then they start making a opinion about you that you are not a right mentor or you are not a experienced mentor. And फिर वो word of mouth flow करता है and other things like that. हाँ. All right. So regarding mentors, sorry, please continue. तो मैं ये कह रहा था कि if you are a professional mentor, then you must also learn when not to mentor. Wow, Okay, ये powerful in है. two circumstances you should not mentor a person. Number one, that you have a doubt that he or she will follow your advice, and number two, when you are not expert on that subject. In both cases you should refuse the mentorship. That okay, I am not capable to mentor you, or it's not a right time to mentor you. मेरे को फर्स्ट वाला इंटरेस्टिंग लगा, उस पर डिस्कस करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय दे यू थिंक दैट दे विल नॉट बी फॉलोइंग इट? आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई एग्जांपल लेके प्रोबेबली? Ria, a good mentor is also a good psychologist. Do you agree? Wow. Yeah. Because if he is not a good psychologist, he cannot mentor properly. Now, what happens that if anybody is coming to you for mentoring, okay, then what he or she explains by the words will be around 35 to 40% only. But what you have to learn from his body language, that will form a major part of your understanding about that person. So you have to listen what is not even told to you. Okay, so once you you learn how to listen, that you will know that तो वो सिर्फ है ना अपनी समस्या मतलब अपना जो है वो समाधान लेने के लिए नहीं आया है, बट वो सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए आया है ना? और वो भी मानेगा नहीं मानेगा है नहीं. ठीक है, आप फॉर्मली बता दीजिए, बट देन डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम दैट वो फॉलो करेगा. ओके, तो एक्सपेक्टेशंस जब लो हो तभी आप मेंटरिंग थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, या मे बी यू टेक अ डिफरेंट रूट टू हैंडल. आप पहले है ना तैयारी कीजिए, मीन्स उसको मेंटरी को तैयार कीजिए कि वो एक्सेप्टेंस मोड में आए. कई बार आप देखेंगे कि ही इज नॉट इन अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना? ही इज जस्ट क्वेश्चनिंग यू, बट ही इज नॉट इन अ मोड ऑफ रिसीविंग इट. ओके, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? डू यू ट्राई टू कन्वर्ट देम टू अ मेंटी और देन यू जस्ट लिसन टू देम, और आपको लगता है सिर्फ बोलने से उनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या एडवाइस दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सुन रहे हैं. वेदर योर लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट. मीन्स अगर सपोज 1 घंटे का 1 घंटे का सेशन है ना, तो
spend first 50 minutes in listening only. Okay. And sometimes the advice can be only your silence. So does that mean कि सिर्फ लोगों को कहीं प्रॉब्लम बताने को नहीं मिलती है, that's why the silence is important? क्योंकि आजकल as you said ना कि we are living in a nuclear family, number one. Number two, in our professional life, people are so engrossed in self only that they really do not mix up at a personal level with each other. So the people need a space or need a person who can listen them. Okay, and Right. I tell you, like in my office, I have a standing instruction to the people that do not enter in my cabin with the problem. Okay, you have to enter with 2 or 3 solutions also. So what happens that they know when I am going to the sir, then this is the problem and these are my opinion, 2 or 3 opinion. In 90% Right. cases, they will solve their problem themselves. They will not come to you at all. Okay, or even if they will come in a confusion between 2 or 3 options. So at that time, you can work like a judge and you can advise them. So it is not important what you how much you speak. You must speak less and less, but you must listen more and more, and encourage people to think about the problem. Think about people means people very rarely think very deeply. They whatever the thought comes to means 99% of the people, they do not know how to monitor the thoughts. For them thoughts are just like a flow of river. They keep coming and they do not have control. But you as a life coach and as a meditator and as a yoga teacher, you know that we can control the thoughts. Yes, So and you we have should to actually stop it. so you have to force people or you have to teach the people to think properly. Yes. So you're directing them as a mentor कि आपके thoughts इधर जाने चाहिए, इस flow में जाने चाहिए, and that's why you encourage them to take out their solutions themselves. Right. But ये हुआ corporate world में, when a mentee comes to you with a personal solution, क्या आप यही advice देते हैं? Because they are coming to throw out their problems at you. Yeah, so same the method will not be different in a professional mentorship and a personal mentorship, because they are coming, they are having some problem. Okay, they are confused. They do not have a solution, so they are coming to you for solution. So it's a problem diagnosis solution, whether it's a personal problem or the professional problem. So the approach doesn't make much different. Okay, so the approach remains the same. So you're trying to say, and of course in NLP also we believe आपके पास अपनी solutions खुद ही होती हैं. But as a mentor, आप 1 घंटे में, as a coach आप 1 घंटे में उनको direct करते हैं. But do you also over the time teach them the skill of digging into their own problems and solutions and solving it yourselves, ताकि they're not attached to you at all points of time? Yes. Yeah, it is very important that you force the people directly or indirectly to think through. They should spend time in thinking. That is very, very important in proper mentoring. They should feel that they got the solution themselves. And I was just a guide, or I was just a torch keeper, और मैंने तो एक दिया जलाया है, रोशनी से तूने अपने आप को खुद ही देख लिया. Beautiful line. That is interesting. So any thoughts about mentorship that misconceptions जो आपने notice किए हैं and वो resistance रहे हैं काफ़ी लोगों को mentorship से दूर रखने के लिए, क्या आपने ऐसे कुछ misconceptions सुने हैं society में? बहुत आपको चारों ओर दिखेंगे आपको कि लोग बाग है ना, मतलब या तो जानते ही नहीं है कि मेंटरशिप भी होती है,
या फिर उनको सही मेंटर Exactly. सही मेंटर नहीं मालूम होता है कि यार सही मेंटर कौन है जो मेरे को इस बारे में गाइड कर सके, और या फिर तीसरा ईगो Right. प्रॉब्लम इतनी होती है कि मैं कोई मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है जब मैं खुद ही नहीं कर सकता हूँ। तो ये थोड़े मिसकंसेप्शन बहुत होते हैं और आपको चारों ओर मिलेंगे, एवरीवेयर यू विल फाइंड इट। सो इट इज वेरी नेचुरल। एक जो मैंने सुना है एंड वो बहुत कॉमन है इज मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, सो इट्स अ फुल स्टॉप देयर कि बस मेरी प्रॉब्लम बड़ी है एंड देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन सॉल्व इट। एंड मैंने ये कोट सुना था कि वी हैव ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री इन बुक्स रिटन, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन आज तक नहीं मिला हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे जिनको लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है? आपको प्रॉब्लम बड़ी क्यों लगती है मालूम है? बिकॉज वो जो प्रॉब्लम एक मार्बल होता है ना, मार्बल छोटा सा स्टोन, ओके, अब वो उसको आपने एक हाथ दूर पे रखा तो आपको कितना दिखेगा, और आपने उसको एकदम आँख के पास ले जाके रखा तो आपको कुछ भी दिखेगा क्या? उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो यही प्रॉब्लम है लोगों की कि वो उसको एक स्टोन की तरह अपने एक आंखों से इतना पास में रखते हैं कि उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, वही प्रॉब्लम ही दिखती है, So they get attached जबकि to the problem. वो कोई प्रॉब्लम बड़ी है ही नहीं। हाँ करेक्ट, एंड बहुत रेजोनेट करने लग जाते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम। बट सोसाइटी में हमें काफ़ी नेगेटिव थिंकर्स जो होते हैं वो भी मिलते हैं, एंड उनके मुंह से जब भी आप सुनोगे, ऑफ कोर्स नॉट इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, बट सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सुनने को मिलती है। सो हाउ डू यू हैंडल सच पीपल जो ना ही आपके मेंटीज हैं, जो आप कुछ भी नहीं है, जस्ट कंप्लेनर्स हैं? Before that, in a lighter mood, I would like to say that in this world, 50% people keep a negative frame of mind, and Right. 50% people keep a positive frame of mind, and fortunately and unfortunately, they are married to each other. So they're nullifying each other out. So कहने का मतलब कि आपको चारों तरफ नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए कि अगर वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाला होगा तो उसको मेंटरशिप की जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर 99% उसको जरूरत नहीं है। आपको ओनली नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड वालों को ही मेंटरशिप की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम कोचिंग में जैसे मोस्टली कह रहा हूँ, हम कोचिंग में जैसे बोलते हैं कि जब आप पॉजिटिव है एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर यू, then also you need a coach to enhance that positivity. So it's not only to convert negative to positive, but also to make positive more positive. लेकिन मेरे को एक चीज बताइए कि आपके पास में दो बंदे आते हैं, ओके, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाला है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाला है, ओके। नाउ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले को आपको कितना समय देना पड़ेगा कंपेयर टू नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले को? मे बी हाफ या लेस देन हाफ, बिकॉज वो ऑलरेडी राइट ट्रैक पे, लेस देन हाफ। उसको आप थोड़ा सा भी गाइड करेंगे उसको समझ में आ जाएगा कि अरे ये मतलब अरे मैंने ये सोचा क्यों नहीं यार, अरे ये मैंने जाना क्यों नहीं, इमीडिएटली समझ जाएगा। लेकिन नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले को पहले तो आपको ठोक पे समझाना पड़ेगा कि तू गलत है। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं गलत हूँ, है ना, क्योंकि he is habitual of thinking in a that way or doing in a that way, so he or she doesn't understand at all कि मैं मतलब ये प्रॉब्लम क्यों है। करेक्ट एब्सोल्युटली। सो आपको जो मेन कैसे हैंडल करते है, नहीं, आपको एक्चुअल में क्या है ना कि हैंडल करने का बेस्ट तरीका जो मैंने बताया ना वो यही है कि उसको मिरर दिखाना, ओके। अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि जैसे एक बंदा अपनी सर्वेंट को बोलता है कि मान लो जैसे ग्लास के बाहर देख रहे हैं, कांच के बाहर, है ना, कि वो कपड़े कितने गंदे हैं सामने वाले के घर के, जबकि उसको बाद में मालूम पड़ता है कि मेरा तो कांच ही गंदा था, ओके। नहीं, तो प्रॉब्लम ऐसी है कि जो बंदा
मतलब उसको क्लियर मिरर दिखाना जरूरी है, और आपको सिर्फ है ना हेल्प करनी है वो मिरर देखने में उसको। ओके, जैसे जैसे उसके मिरर में क्लैरिटी होती चली जाएगी और उसको अपना रूप दिखने लगेगा, अपना चेहरा ढंग से दिखने लगेगा, अपना मेरे को एक चीज दिखने लगेगा, अपनी समस्या ढंग से दिखने लगेगी, तो उसको खुद को ही सॉल्यूशन समझ में आने लग जाएगा। तो आपको जरूरी है कि उसको प्रॉपर मिरर दिखाना। एज ए मेंटर अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको उस जिस मिरर में वो चेहरा देख रहा है उस मिरर को क्लीन करना। वाह, ये बहुत अच्छा मेटाफर था कि हमें सिर्फ मिरर दिखाना है, ज़्यादा कुछ मिरर बनाना नहीं है। बिकॉज काफ़ी लोग ये ट्राई करते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ सोल्यूशन दिखाना भी है, ये भी करना है, गाइड भी करना है, दिस टू मच प्रेशर ऑन द मेंटर। बट ये अच्छा है कि हमें सिर्फ मिरर दिखाना है। आई रियली लाइक दैट। तो आपको क्या लगता है कि सॉरी बोलिए बेटा, नहीं बोलिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जनरेशन जैसी है, हाउ कैन वी फाइंड मेंटर्स। मैंने ये देखा है कि फैमिली ऑफ कोर्स छोटी है, तो हमें इतने सारे लोग नहीं मिलते जिनमें वो एबिलिटी है या एक्सपर्टीज़ है हमारी फील्ड वाली। तो हम कैसे मेंटर्स ढूंढें, या आपने कोई प्लेटफॉर्म्स देखे हैं? और बिकॉज कोचिंग बहुत फॉर्मल हो जाता है, मेंटरशिप इज़ वेरी इनफॉर्मल एंड इट्स मोर ट्रस्ट वर्दी, बिकॉज ज़्यादा अटैचमेंट होता है वर्सेस अ कोच एंड अ क्लाइंट रिलेशनशिप। What are the qualities? आपने 3 A's definitely mention किए थे, but apart from that, where do you think we can find mentors? एक्चुअल में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन माय ओपिनियन। मेंटर, सही मेंटर ढूंढना ऐसे है जैसे किसी कोयले की खान में एक हीरे को ढूंढना। आप समझे क्या? ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ कि इसका कारण ये है कि प्रोफेशनल मेंटर आपको बहुत मिलेंगे। आप एक चीज बताइए कि आपके शहर में कितने डॉक्टर हैं? से 1000 डॉक्टर हैं मान लो, 1000 से लाखों में होंगे। मतलब ठीक है ना। आप अगर बैरिन में है तो 10,000 डॉक्टर होंगे ज्यादा से ज्यादा। ओके, नाउ यू वांट ए गुड डॉक्टर जिससे कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, है ना। फ्रीक्वेंसी ने मैच करे इन मीन्स वो उसमें एबिलिटी भी हो, उसका एटीट्यूड भी अच्छा हो, है ना, और वो एडवाइस भी, डायग्नोसिस भी अच्छा करता हो। तो ये इट्स नॉट लाइक एक टैक्सी ढूंढना है तो कोई भी ड्राइवर हो हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। इट्स फाइंडिंग ए राइट person who can understand your problem, who can guide you, and you can have a good frequency also with him. It's like a marriage actually. आप बताओ कितना मुश्किल है एक सही पार्टनर ढूंढना। इज दैट इजी? हाँ, तो वैसे ही है एक मेंटर मेंटी रिलेशनशिप इज ए लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। ओके, तो इतना आसान नहीं है। तो कई बार इसमें ट्रायल एरर जैसा बहुत होता है कि भाई आपने देखते हैं, थोड़ा उसको जांचते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप कोई दूसरा ढूंढते हैं। और फिर जरूरी नहीं है कि एक मेंटर हो, ये भी है ना। इट्स नॉट लाइक ए, अगेन आई विल से, इट्स नॉट लाइक ए मैरिज का आपने एक से शादी कर ली तो जिंदगी भर अटके रहो, ठीक है ना। तो आपका डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट मेंटर भी हो सकते हैं, बट ढूंढना इज नॉट सो इजी। पर्टिकुलरली उसके कई रीजन है। एक तो ये है कि दिस प्रोफेशन इज स्टिल नॉट वेरी फॉर्मलाइज्ड, और एज कम्पेयर टू द अदर। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट अभी मेंटर मेंटी का जो है इतना पॉपुलर नहीं है। 90% जनता समझती नहीं है कि मेंटर भी कुछ होता है। तीसरा है कि इफ व्हेन यू आर ए वेरी यंग देन इट इज अगेन ए प्रॉब्लम। उनको लगता है यार इतने यंग को क्या मेरी प्रॉब्लम समझ में आएगी, है ना। वैसे किसी थोड़ा एज हो, मेरे जैसे एज हो, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। उनको लगता है कि अगर बाल सफेद है या बाल नहीं है इसका मतलब इसने कुछ बहुत दुख खाई है जिंदगी में। तो ये
मिसकंसेप्शंस हैं जो एक्चुअली ये रिलेशनशिप को और डिफिकल्ट बना देते हैं. दैट्स ट्रू. बट आपको क्या लगता है, इंडिया में ये इंक्रीज हो रहा है या आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ये? It's a growing profession, definitely. मतलब it's a growing profession, same like a psychologist and psychotherapist. It is also a growing profession where people are looking for a mentorship, and many colleges, institutes are there who teach you the mentorship, and it's a definitely growing. Definitely, that's nice. आपके कुछ last words or few suggestions या advice for mentorship or anything related to that जो मैं शायद cover नहीं कर पाई? नहीं, एज सच ऐसी कोई एडवाइस तो नहीं है मेरी, है ना. लेकिन एक बात है कि मेंटर हैज टू बी ए कंटिन्यूअस लर्नर, एंड हाँ. और यू नो वन थिंग, हु इज द मोस्ट पॉपुलर मेंटर मेंटी इन आवर हिस्ट्री? Akbar Birbal? I don't know, that's the name that popped up. No. So am I close? No. Chanakya? Something to do with Chanakya and... No. No. Then मेरे को नहीं पता. Krishna and Arjun. Krishna and Arjun are the biggest mentor and biggest mentee. What Krishna did? Throughout his life, he had only one mentee, main mentee. Otherwise, the entire Pandav. But Arjuna was the main mentee for him, and for Arjun, Krishna was the main mentor. And entire Gita is a mentoring only. It's a complete mentoring. It's a dialogue between a mentor and mentee. उससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है. राइट. तो इसमें कृष्णा का क्या रोल था? मतलब थोड़ा सा, जो मेरे व्यूअर्स हैं शायद भगवत गीता नहीं फॉलो करते या हिंदुइज्म नहीं प्रैक्टिस करते, तो आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है आपकी एक बुक भगवत गीता के ट्रांसलेट भी हुई है, उसके बारे में भी है. क्या हम इस पर एम्फसाइज कर सकते हैं? यस. तो गीता में बेसिकली आपको ये मालूम होगा कि when the both Pandava and Kaurava, they came in Kurukshetra for fighting, and दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, और अर्जुन जो है अपना गांडीव को नीचे रख देता है कि मैं, मतलब मेरे ही जो स्वजन है, मेरे ही जो प्रियजन है, मेरी फैमिली है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ. No, he was not having a lack of ability. He was having a ability to kill everyone and win the war. Arjuna. Okay, because he was the best Dhanurdhar. Okay. And he was having the best friend along with him, means as a Sarthi, Krishna. But what he lost is his confidence. He lost his confidence completely. एंड वो भटक गया कि मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा था. तो कृष्णा ने मतलब डिफरेंट तरीके से उसको ये समझाने की कोशिश की कि तेरा काम सिर्फ लड़ना है. मीन्स उसको उसका रोल ध्यान दिलाने की कोशिश की कि व्हाट इज योर रोल. हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हम अपना रोल भूल जाते हैं कि हमारा इस रिलेशनशिप में क्या रोल है, या मेरा इस जगह पे क्या रोल है. और जब हम रोल को मिक्सअप करते हैं तब प्रॉब्लम आती है. तो कृष्णा ने पूरी गीता के अंदर, मतलब 18 अध्याय में और 700 श्लोक के अंदर बार बार उसको क्लैरिटी ये दिलाने की कोशिश की कि ये तेरा रोल है और तेरे को अभी और कुछ नहीं सोचना है, तेरे को सिर्फ ये रोल निभाना है. ओके. तो ये जो मेंटर का मेन काम यही है कि मेंटी को उसका रोल समझाए, उसका रोल याद दिलाए, उसकी तेरे को करना क्या है और क्या, व्हाट इज राइट टू डू. सो दैट इज द बेस्ट मेंटर मेंटी रिलेशनशिप इन आवर हिस्ट्री. आई वुड लाइक टू नरेट. वाओ. तो आपका
बेस्ट पार्ट ऑफ भगवद गीता या बेस्ट एडवाइस जो कृष्णा ने अर्जुन को दी, ऐसा कुछ है जिसका आपने भी पर्सनल उदाहरण लेके प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में? हाँ, बेसिकली मैंने गीता से 3 चीजें सीखी है. ओके, राइट. सबसे पहला है कि डू योर ड्यूटी. ओके, मतलब वॉट एवर द मैटर इज, लाइक अगर सास हैं, है ना, तो आपको अपनी बहू को अच्छे से ट्रीट करना है, और अगर आप बहू हैं तो आपको अपनी सास को अच्छे से ट्रीट करना है, बहू का रोल अच्छे से निभाना है. आप अगर बॉस हैं तो आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को कंटिन्यूअसली ट्रेन करना है, उनको मोटिवेटेड रखना है, उनको गाइडेड रखना है. आप अगर सबॉर्डिनेट है तो आपको अपने बॉस की रिस्पेक्ट करनी है. आप एज ए फादर है, आपका रोल है, एज ए चाइल्ड आपका रोल है, मतलब अपने जिंदगी में जितनी रिलेशनशिप है ना उतने ही रोल है. तो उस रोल को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. ये एक मैंने सबसे पहली बात सीखी जो गीता से. ओके, दूसरी चीज जो मैंने सीखी गीता से कि कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस टेकिंग नॉलेज मीन्स कंटिन्यूअस विजडम लेना बहुत जरूरी है लाइफ में. उसका रीजन ये है कि इन लाइफ एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट वी हैव टू टेक डिसीजंस. मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं वॉक पे जाऊं या नहीं जाऊं, मैं ऑफिस में क्या काम करूं, मतलब आप दिन में कम से कम 5000 डिसीजन लेते होंगे. ओके, नाउ द क्वालिटी ऑफ डिसीजन किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन डिपेंड करती है आपके नॉलेज पे, आपके विजडम पे, आपके विवेक पे. ओके, अगर आपका विवेक अच्छा, एक ही सर्कमस्टांसेस में आप देखेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन लेते हैं, राइट है, एक ही सर्कमस्टांसेस में है. और डिसीजन ज्यादा सही किसका होगा? जिसका विवेक अच्छा है, जिसकी नॉलेज अच्छी है, जिसका ज्ञान अच्छा है. तो हमें जिंदगी भर है ना नॉलेज लेते रहना है. ये एक दूसरा संदेश गीता से मिलता है कि आपको नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है. ओके, और तीसरा ड्यूटी एंड नॉलेज. हाँ, नंबर 1 डू योर ड्यूटी, नंबर 2 कीप कंटिन्यू मीन्स कीप लर्निंग. Okay, keep learning. Okay, and number 3 is keep loving, love each and every one. Okay, मतलब आपके जितने रिलेशनशिप है, आप देखिए एक रिलेशनशिप में अगर लव होगा, है ना, तो कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं आएगी. आज हमारी जिंदगी में 90% प्रॉब्लम इसीलिए है कि देयर इज अ लैक ऑफ लव बिटवीन 2 पर्सन. तो कंटिन्यूअस मीन्स लविंग ईच एंड एवरी वन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ. सो ये 3 चीजें मैं गीता से मानता हूं, जिसको गीता में 3 योग का भी नाम दिया है, अगर आपने सुना होगा, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग. ओके, कर्म योग इज बेसिकली डू योर ड्यूटी, ज्ञान योग इज कीप लर्निंग, है ना, एंड थर्ड इज द भक्ति योग मीन्स डिवोशन. डिवोशन इज द लव, लव इज द हाईएस्ट, डिवोशन इज, भक्ति इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव. राइट. सो ये 3 चीजें गीता से सीखने को मिलती है. दैट्स ग्रेट. और ये हम मेंटी की रिलेशनशिप में भी, या एक्चुअली एवरी पार्ट ऑफ लाइफ हम ये एक्चुअली यूज कर सकते हैं. हर जगह कोई चीज ऐसी नहीं है जहां आप यूज नहीं कर सकते हैं. ये दैट इज़ ग्रेट. ये टेकिंग आउट फ्रॉम द स्पिरिचुअल टेक्स्ट हमें एक्चुअली बहुत मज़ा आया ये डिस्कस करके. दो हमारी चीज़ें सामने एविडेंट होती है, कभी कभार हमें भूल जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भूल जाते हैं. मुझे भी स्ट्राइक नहीं हुआ कि अर्जुन एंड कृष्णा की रिलेशनशिप एक्चुअली प्योरली मेंटो मेंटी की रिलेशनशिप में. हमने पढ़ा है इसके बारे में, हमने देखा है टेलीविज़न पे, बट वो एक कॉन्टेक्स्ट फिट करना, मार्गदर्शक आपके जैसे लोगों की ज़रूरत होती है कभी कभार, हमें भी. तो थैंक यू. आपकी तरह काफ़ी लोग चाहते होंगे इस इंटरव्यू के देखने के बाद कि आपको कैसे रीच आउट किया जाए, मे बी फॉर अ स्मॉल डिस्कशन, या मे बी फॉर जस्ट डिस्कसिंग द बुक, या कोई रेफरेंस के लिए कि मेंटरशिप कैसे हो सकती है एंड मोर डिटेल्स. तो आपको कैसे रीच किया जा सकता है? मेरा नाम हेमंत लोढ़ा है और मेरी वेबसाइट है www.hemantloda.com. सिंपल, hemantloda.com. और उस पर करीब मेरे 350 ब्लॉग्स हैं,
350 ब्लॉग्स हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और जो 11 बुक्स है वो फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोडेबल है। और मतलब मेरा जो फ़ोन नंबर है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9325536999। आई लिव इन इंडिया। और मेरा जो ईमेल आईडी है lodhah@gmail.com। डेफिनेटली, थैंक यू। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आपको टाइप करे हुए भी मिलेगी। सो इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू हिम, हमारे लिए तो बहुत एक्सेसिबल है, ये तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, बट आप भी इनके साथ अगर कोई डिस्कशन है, कोई भी आप मेंटर रिलेशनशिप चाहते हैं तो डेफिनेटली रीच आउट टू हिम। आई नो फॉर अ फैक्ट ही इज़ सो अप्रोचेबल, ही रिस्पॉन्ड्स ऑन टाइम, एंड आपकी सोल्यूशंस ये नहीं तो आपको रेफ़र तो कर ही देंगे टू एनी वन हु फाइंड्स द सोल्यूशन। हम पर्सनली धन्यवाद देते हैं। 1 मिनट धन्यवाद देने के पहले एक शेर बोलना चाहूँगा, है ना? नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, सही मेंटर चुनो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। वाह वाह, ये क्या ये आपने लिखा है? नहीं मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया। वाह वाह। तो इसीलिए मैं एक्चुअली अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती थी, एंड मुझे पता था कि इस टॉपिक पे आपसे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को भी अपना मेंटर मिला हो। मे बी विद दिस इंटरव्यू आप इंस्पायर हुए हैं अपने मेंटर को ढूंढने की जर्नी में। इफ़ नॉट, आई एम श्योर सर कैन डेफिनेटली हेल्प यू। रीच आउट टू हिम एज मच एज यू कैन। अगर आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप पे, सो मैनी मीडियम्स। So definitely reach out to me or to sir, and hopefully you find your mentor in your journey of life, your torchbearer, your margdarshak. So with this, thank you so much sir for Thank you Riya, thank you for giving me this opportunity. I definitely hope जो भी ये देख रहे हैं उनको बेनिफिट मिले हमारे इस चैनल से। अगर आप चाहते हैं और कोई टॉपिक्स डिस्कस करना है, वी वुड लव टू टेक दैट अप। हमें बस थोड़े समय की और आपकी कमेंट्स की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक विद अ बेटर एपिसोड, विद अ बेटर कंटेंट, एंड विद अ लॉट ऑफ योर लव। सो सब्सक्राइब, शेयर, एंड नमस्ते। थैंक यू सो मच।